Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAT, JAT, and MATSNAP and IFT. Mockzone is basically owned by 3D Learning and focuses on mock tests, crash courses, etc. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for non-CAT exams like NMAT, SNAP, TISNET and CMAT, etc. Okay, because I am going to discuss very important concept on clocks. Clocks concept have been frequently asked in exams like in MAT, SNAP. So it is quite important concept, and I've seen many students don't able to answer the questions in mocks. So we are going to discuss some important concepts on clocks. So I recommend you all to just like the video before we start, because there are many students who are doing self-study. It will help them, because when you like the video gets displayed in better ranking. Also subscribe the channel, because we have been uploading many videos, and in coming time also we are going to upload too many videos, be it concept based video, be it a strategy based video, be it a notification based video. So guys, do subscribe the channel and like the video. Okay, chalo guys, so let's start. So guys, we will look into the basic concepts. So we know that in a clock there are 12 divisions basically. Okay, 12 hour divisions, okay, of 360 degree. So coming to the hour end, so we will first find the angle. Okay, angle for both minute and hour end. You can see the pic. This is the basic thing you all know. Okay, nothing to explain in this. So we know that for hour end, 360 degree gets covered in 12 hours. ठीक है, in 12 hours 360 कवर करता है आर एंड. ठीक है, सो 1 आवर में कितना होगा? इट विल बी 30 डिग्री, और इन 1 मिनट इट विल बी 1/2 डिग्री, 30 by 60. So we got that in 1 minute R and covers 1/2 degree. It moves. ठीक है, coming to the minute hand covers 360 degree in 60 minutes. ठीक है, 60 minutes में 360 degree कवर करता है minute hand. 60 minutes is equal to 360 degree. So we have 1 minute is equal to 6 degree. So we got minute hand moves 6 degrees in 1 minute, and R and moves 1/2 degree in 1 minute. This we got. Now if we want to know, this is the kind of speed. Okay, now we want to know the relative speed of both. ठीक है, so minute hand is faster than R hand, so the relative speed will be 6 minus 1/2. This is how much? 11/2 minutes, 2 degrees, sorry, in 1 minute. In 1 minute they make a gap of 11/2 degree. Now we need to know about the distance. ठीक है, about the distance. So it will be what? Sorry, now we will be knowing the time. ठीक है, so कि after how much time they will meet. ठीक है, after every how much interval they will meet. So this we got what? This we got the relative speed, and the distance is 360 degree. ठीक है, 360 degree is the distance. I am explaining the form of TSD so that you understand, because many just know the values, they don't know the formula, they don't know the derivation, how it came. Okay, so time will be what? Time is equal to distance upon speed. Distance is 360 degree and relative speed is 11/2. ठीक है, so it comes out to be what? It comes out to be you can just 360 into 2 upon 11, it comes out to be 720 by 11. इसको हम लोग गाइस ऐसे लिख सकते हैं 65 5/11. ठीक है, दिस इज इन मिनट्स. ठीक है, टाइम विल बी इन मिनट्स. ठीक है, सो गाइस so both R and minute hand basically coincides at interval of after an interval of 65 5/11. So means if both are coinciding at 12, so next time they will coincide at 12 plus 65 5/11. मतलब 1 minute 1 PM 5 minutes 5/11 ऐसा. ठीक है, so ये इंटरवल में they will coincide after this interval. तो this is the one thing. ठीक है, तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, एंड ये this वैल्यू 65 5/11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने टाइम बाद वो हर इंटरवल में मीट करती हैं. ठीक है, तो ये होता है वो गाइस. ठीक है, इसको समझने का एक और तरीका है. वी ऑल्सो हैव वन मोर मेथड टू अंडरस्टैंड दिस. वी नो दैट व्हाट वी कैन से इज 60 मिनट्स में मिनट हैंड पूरा कवर करती है, 60 मिनट्स लेती है. ठीक है, एंड जितनी देर में मिनट हैंड चलती है 60 मिनट्स, आर एंड कितना लेती है?
आर एन ट्रेवल्स 5 मिनट्स, ठीक है, दिस फ्रॉम हियर टू हियर 12 to 1, ठीक है, 5 मिनट्स. सो रिलेटिव क्या हुआ 55 मिनट्स, ठीक है, 60 - 5 मतलब मिनट हैंड इज 55 मिनट्स मोर फास्टर देन आर हैंड, वी कैन से दिस, ठीक है. सो इन 60 मिनट्स you can say 50 or you can say like this 55 minutes are gained in 60 minutes, ठीक है. तो 1 minute will be gained in 60 by 55, 12 by 11 we got here also the same thing, 12 by 11 also we got, ठीक है. so this is the thing. तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है. तो 12 by 11 ये काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है. सो इसको अगर चेंज कर लो मिनट्स में तो वही आएगा. दिस इज एन आर 12 into 60 by 11 720 by 11. सो वी गॉट द सेम थिंग. जो यहाँ पे 65 by 11 आया, यहाँ पे भी वही चीज़ आई, ठीक है, वही चीज़ आई, सेम चीज़ आई, ठीक है. 12 by 11 को मल्टीप्लाई वो कर लो तो हो जाएगा अपना, ठीक है. तो गाइस यहाँ पे ये आपको चीज़ याद रखने वाली है कि 65 5 by 11 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. तो एक हम लोग कंसेप्ट तैयार हो गया है रिलेटिव का. नाउ कमिंग टू सम एंगल प्रॉब्लम्स, कि एंगल प्रॉब्लम्स में क्या होता है. तो कभी भी कोई पूछे कि सपोज दिस 230 है, ठीक है. अच्छा एक चीज़ और कर लो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है या. सो गाइस यहाँ पे जो कॉन्साइडिंग वाला पार्ट होता है, सो देयर आर 12 डिविजन्स बट बोथ मिनट एंड आवर एंड कॉन्साइड्स ओनली 11 डिविजन्स, ठीक है, नॉट 12 डिविजन्स, बिकॉज बिटवीन 11 and 12, ठीक है, दे डोंट कॉन्साइड एक्चुअली, ठीक है. सो ऐसा अगर आप करके देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 11-12 के बीच में वो कॉन्साइड नहीं करती हैं, ठीक है. 12 से 1 के बीच में यू कैन से 12 में कॉन्साइड करती है, 1 से 2 के बीच में 1 5 पे अराउंड करेंगे, 2 से 3 के बीच में ऐसा करके यू विल सी, देन यू विल गेट टू नो कि 11 से 12 के बीच में कॉन्साइड नहीं किया उन्होंने, ठीक है. दैट इज हम लोग को 12 डिविजन्स में 12 बार कॉन्साइड नहीं कर रही है वो, दैट दे आर कॉन्साइडिंग 11 टाइम्स, ठीक है. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. इन 12 hours they are coinciding 11 times, in 24 hours they are coinciding 22 times, into 2 करो, ठीक है. coinciding means they are making 0 degree angle, you can say in this way. बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये भी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं. एंड एक चीज़ और, ये coincide वाला हो गया, ठीक है. सिमिलरली स्ट्रेट वाला जो होता है 180 डिग्री, ये भी यही होता है. 12 में से ये लोग 11 बार ही करेंगे coincide, 12 में से 11 बार ये लोग स्ट्रेट बनाएंगी, 24 आवर्स में से 22 बार ये लोग स्ट्रेट बनाएंगी 180 डिग्री मिनट हैंड एंड आर हैंड, ठीक है. बट और कोई भी एंगल होगा दे विल मेक इट 2 times in 1 hour. तो मतलब कोई भी अगर एंगल होगा इसके अलावा 0 डिग्री एंड 180 डिग्री के अलावा, इफ देयर इज एनी एंगल देन दे विल कॉन्साइड, दे विल बेसिकली मेक एन एंगल 2 times. सो 12 आवर्स में दे विल मेक 22 times, ठीक है. 24 आवर में दे विल मेक 44 times. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस, तो याद रख लो. और कभी भी इट सेज इन ए डे मतलब 24 आवर्स होते हैं, मतलब पूरा 24 घंटा लेंगे, 12 का नहीं लेंगे. जब तक 12 आवर्स लिखा ना हो, अगर डे लिखा है तो डे को 24 ही मानोगे, तो आप आंसर मार्क करोगे 22. इन केस 22 का मार्क करोगे जब आपका 0 डिग्री की बात हो रही है या 180 डिग्री की बात कर रही हो. 0 को दूसरा नाम है कॉन्साइड, 180 दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन. याद रख लो चीज़. ये चीज़ें आपको SRCC में डायरेक्टली दिखेंगी. SRCC हो गया, बीट CMAT हो गया, इवन टेस्ट में आराम से दिखेगा. बट कोई भी एंगल हुआ इसके अलावा कोई भी 44 हो जाएगा वो, अगर उसकी बात कर रहे हैं हम लोग. सॉरी, हाँ सही है, ठीक है. ये बात कब कर रहे हैं हम लोग, हाँ ठीक है, 12 आवर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. 12 आवर्स में 44 आवर होगा अगर कोई और एंगल है, मतलब डबल हो रहा है. एक तरह से समरी बनाए तो 0 और 180 डिग्री डबल होता है, ठीक है, जहाँ पे बात हो रही हो. अगर 0 और 180 डिग्री को छोड़कर कोई भी एंगल होगा डबल होगा वो उसका, ठीक है. बस ये 11 और 22 याद रखना कि 11 और 22 11 के मल्टीपल में ही होगा जो होगा. कुछ लोग 12 और 24 कर देते हैं, गलत हो जाएगा वो, ठीक है. ये आपको सोचना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी लोगों को नहीं आता है, मैंने बता दिया, ठीक है. नोट कर लो चाहो तो उसको, ठीक है. चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एंगल कैसे बनता है बीच में. बहुत ईजी है, बहुत बच्चों को तो वो भी नहीं आता है, ठीक है. मैं ज़रा स्क्रीन क्लियर कर लूँ, देन वी कैन जस्ट व्हाट इज द इशू, या सम इशूज देयर, या let me just clear the screen, ठीक है. oh sorry, yeah, so just we have, so yeah, now the angle between any two angle between R and minute hand
इज गिवन बाई 30h माइनस 11m/2 मॉड लगा दो। अगर कभी आंसर आपका, क्योंकि दो आंसर आ जाते हैं, अगर मान लो 2:20 हो रहा है, 2:20 में एंगल कैसे बन सकता है, मान लो ऐसे 2 है, ऐसे 20 है, एक एंगल ये बनेगा, छोटा एंगल एक्यूट एंगल, एक एंगल ये भी तो बनेगा, ठीक है। तो 360 माइनस ये, ठीक है। तो ये मॉड लगा रहता है यहाँ पे। कभी अगर आपका नेगेटिव आ रहा आंसर तो आप उल्टा ले लेना, 11m/2 माइनस 30, ठीक है, 30h। अब ये समझा देते हैं, 30h माइनस 11/2 है क्या, h यहाँ पे r है। कभी मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, पूछा गया 2 घंटे 20 मिनट में बज रहे हैं घड़ी में, व्हाट इज द एंगल मेड बाई द मिनट एंड आवर एंड, बिटवीन द मिनट एंड आवर एंड। क्या करो, 30 इंटू 2 आवर्स का 2 ले लो, 2 घंटा है ना, 2 आवर माइनस 11/2 इंटू 20, ये मॉड लगा दो, ठीक है। ये हमारा हो गया 60 माइनस 110, मॉड लगा हुआ है, ये हमारा आ गया 50 डिग्री, ठीक है। हमारा एंगल जो हुआ वो कितने का हुआ, 2:20 में एंगल बनाएगा, अराउंड 50 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये एंगल के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। और कभी भी पूछ लेगा वो 2 से 3 के बीच में कितना बज रहा होगा, मिनट हैंड कहाँ पे होगी, जब 60 डिग्री एंगल होगा, उल्टा पूछ लेगा। तो उसके से आप क्या करोगे, आवर एंड को आप 2 रख लो, क्योंकि 2 से 3 के बीच की बात है ना, 2 बज के कुछ हो रहा होगा, आर एन को 2 रख लो, मिनट हैंड निकालना है मुझे, इक्वल टू 60 डिग्री कर दो, एंड निकल आएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे इस तरह का हम लोग, ठीक है। वी विल डू दिस क्वेश्चन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक हो गया। और हम लोग को एग्जाम्पल अगर लें, अगर मान लो मिनट हैंड गेन करती है, हाँ गेन और लूज का कंसेप्ट, कोई अगर घड़ी गेन कर रही है तो घड़ी वो फास्ट है, ठीक है, घड़ी वो फास्ट है। अगर वो 5 मिनट पर आवर गेन कर रही है गाइस, तो वो हर घंटा मतलब पर आवर बोल रहा है 5 मिनट गेन कर रही है, तो 5 घंटे में वो 15 मिनट आगे चल रही होगी, ऐसा है। मान लो अभी अगर 8 बज रहा है, अभी एक्चुअल घड़ी में, उसकी घड़ी में हमने सेट कर दिया 8 बज रहा है, और ये बोला गया कि द वॉच गेन्स 5 मिनट्स पर आवर, ठीक है। तो जब एक्चुअल में 12 बज रहा होगा तो इस घड़ी में क्या बज रहा होगा, ऐसा पूछेगा वो, ठीक है। तो 8 से 12 में 4 घंटे हैं, अब होना बजना इसको 12 चाहिए, इट शुड बी 12, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज द वॉच गेन्स 5 मिनट्स पर आवर, तो 20 मिनट्स और होगा, तो इस घड़ी में 12:20 हो रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो ये आपको याद हो गया, आ गया होगा, हमने ओरली समझा दिया है, ठीक है। गेन और लूज में कंफ्यूज मत होना, गेन मतलब घड़ी फास्ट जा रही है, आगे जा रही है, ठीक है, जल्दी कर रही है, कवर ज़्यादा कवर कर रही है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो गाइज ये हमारा था, और एक समरी देख लो एक बार अब इसकी, ठीक है। 60 मिनट्स स्पेस 360 डिग्री इन 1 आवर, ठीक है। अगर 60 मिनट का स्पेस की बात करें तो वो होता है 1 मिनट स्पेस का हो जाएगा 6 डिग्री इन 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट के लिए 30 डिग्री कर दो, ठीक है। और फिर राइट एंगल परपेंडिकुलर 15 मिनट का होता है, बताइए वो, ठीक है। राइट एंगल और परपेंडिकुलर इक्वल टू 22 टाइम्स, ठीक है, इन 12 आवर्स, 44 टाइम्स इन 24 आवर्स, ठीक है। मतलब कोई भी वो एंगल होता है, राइट एंगल जरूरी नहीं है, स्ट्रेट लाइन एंगल और स्ट्रेट लाइन 30 मिनट स्पेस होता है, वो पता ही सबको दिख ही रहा है, 30 मिनट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया, ये कोई 7th वाला देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, 22 टाइम्स इन डिफरेंट, पढ़ा हुआ हम लोगों ने पहले, ये रिविजन टाइप का है। एंगल ट्रेस बाई आर एंड इन 12 आवर्स 360 डिग्री, एंगल ट्रेस बाई मिनट एंड 60 मिनट्स 360 डिग्री, स्पीड ऑफ आर एंड ½ डिग्री पर मिनट, मैंने पहले पढ़ाया था ये। स्पीड ऑफ आर एंड होता है 1/2 डिग्री पर मिनट, ठीक है। स्पीड ऑफ मिनट एंड होता है 6 डिग्री पर मिनट, तभी हम लोग का निकल के आया था 6 - 1/2, ठीक है। तो हम लोग का ये क्लियर हो गया है, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर दिया गाइस, ठीक है। हमने सब कुछ बता ही दिया पहले ही। डायरेक्टली में अगर ये आपको रीड करता कोई फायदा नहीं होता, समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा तो बेकार है वो, ठीक है। ये चीज़ है, समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, ठीक है। तो ये आप याद, और ये जो होता है कि डिफरेंस 65 5/11, ये आपको बहुत काम देगा, ठीक है। और 12/11 आवर्स के टर्म्स में, ये मिनट्स के टर्म्स में, ठीक है। इंटू 60 कर दोगे तो 720/11 आ जाएगा, ठीक है। बस ये है। एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 द हैंड्स मेक्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्रीज। अब यहाँ 3 से 4 के बीच में 10 डिग्री कब बनेगा, फॉर्मूला लगा दो, 30h माइनस 11m/2 मॉड ले लो, ठीक है। 30 इंटू 3 माइनस 11 इंटू m/2 मॉड लगा रहने दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 डिग्री हो गया। 60 माइनस
11m/2 इक्वल टू 10, यहाँ पे हम इसको ले जाएंगे वापस, हमारा आ जाएगा 50 इक्वल टू 11m/2। ठीक है, हमारा m आ गया 100/11। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 300/11, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको आप मिनट्स में कर सकते हो काट के, मतलब इसको तुम राउंड ऑफ कर दो 3:09, ऐसा कुछ हो रहा होगा, 99 है ना वो, तब हमारा 10 डिग्री एंगल बनाएगी ये। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है। तो मतलब ये कैलकुलेशन ऐसा ही है, कैलकुलेशन में कुछ गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सब सही है। तो तरीका ये होता है इसको करने का। तो ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं ये भी, और ऐसे क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली सी इन टेस्ट सीमैट एंड एसआरसीसी बहुत ईजी क्वेश्चन देता है गाइस। वो क्वेश्चन आपको नेट में मिल ही जाएंगे, आपने देखे ही देखे होंगे। 99% क्वेश्चन आपका पहले पढ़ा हुआ होगा, उसका गारंटी दे रहा हूँ। स्नैप एंड में थोड़े नए क्वेश्चन आ जाते हैं, ईजी होते हैं वो भी, बट टेस्ट सीमैट सीटी एसआरसीसी इनमें क्वेश्चन पुराने ही आते हैं, आपके नेट में पहले से पढ़े हुए हैं। आपने अगर प्रैक्टिस की तो हर क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है, ऐसा है। तो गाइस ये क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी घूमता रहता है मॉक्स में हर जगह। द मिनट एंड ऑफ द क्लॉक ओवरटेक्स द आर एंड एट इंटरवल ऑफ 65 मिनट्स ऑफ द करेक्ट टाइम। अब मिनट एंड जो है वो ओवरटेक करती है आर एंड को 65 मिनट्स। हमने क्या पढ़ा है गाइस, हर 65 11/5 में करती है वो ओवरटेक। यहाँ पे 65 कर रही है, ये बहुत जल्दी इसको हो रही है, जल्दी जल्दी कर रही है ओवरटेक, तो ये गेन कर रही है ना। पहली बात तो ये बदल गई, 65 मिनट्स में कर रही है और यहाँ पे इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो गेन कर रही है क्लॉक। ठीक है, हाउ मच ऑफ द डे डज द क्लॉक गेन और लूज। डे 24 आवर्स की बात हो रही है, पहले बोल दिया मैंने। अब देखो ये हमको पहले से पता है, हमको इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा अपना। हमें पता है कि 65 11/5 मिनट्स हो रहा है, तो कितना डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 65 मिनट्स में कितना गेन कर रही है, मतलब 65 मिनट्स में कितना गेन कर रही है, 65 11/5 माइनस 65। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 65 11/5 माइनस, तुम कॉमन ले लो, -1 हो गया है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 65 और 6/5। ठीक है, 65 मिनट्स में ये इतना गेन कर रही है, तो ये तुम्हारा 1 मिनट में कितना गेन करेगी, 1 मिनट में ये गेन करेगी अरे मैंने क्या किया, ये गलत कर दिया मैंने कुछ। ठीक है, ये टाइपो हो गया, पता नहीं कहाँ था मैं। ठीक है, 65 11/5 माइनस 65 करेंगे तो हमारा इसको ऐसे ले सकते हैं ना, 65 प्लस 11/5 माइनस 65, सीधे 11/5 आ गया। ठीक है, तो गाइस 65 मिनट्स में ये कर रही है 11/5। ठीक है, तो ये 60 मिनट्स में कितना गेन करेगी, तो ये 24 आवर्स में कितना करेगी, तो 24 इंटू 60 कर दो, 11/5 इंटू तुम्हारा हो जाएगा 24 इंटू 60/65। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, 65 मिनट्स में ये गेन कर रही है 11/5। ठीक है, हमें निकालना है 24 आवर्स में, 24 आवर्स इंटू 60 कर दो, तो मतलब यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम लोग। नीचे आ गया 65, 1 मिनट का आ गया, फिर इंटू 24/5 कर 60 कर दो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो काट दो, 5 12 जा, 5 13 जा, 5 और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा तो 65 रहने दो उसको फिर। ठीक है, तो बस हमारा ये कैलकुलेट करके करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये इतना गेन कर रही है। ठीक है, तो गाइस ये तुम्हारा आई गेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, और ये मैं फिर समझा दूंगा, डाउट हो रहा है कुछ तो। यहाँ पे क्या बोल रहा था, मिनट एंड ऑफ द क्लॉक ओवरटेक्स द आवर एंड एट इंटरवल्स ऑफ 65 मिनट्स ऑफ द करेक्ट टाइम। ठीक है, हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लूज। तो मैंने बोला कि हम लोग को पता है कि 65 11/5 हर 65 11/5 मिनट्स में ये कॉन्साइड करती हैं दोनों, बट यहाँ पे 65 मिनट हो रहा है, तो ये गेन कर रही है ना क्लॉक, जल्दी जल्दी कॉन्साइड कर रही है। तो कितना गेन कर रही है 65 मिनट्स में ये, तो 65 11/5 माइनस 65। ठीक है, तो ये इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग 65 11/5 को, 65 प्लस 11/5 माइनस 65 कट गया, तो 65 मिनट्स में इतना कर रही है गेन। तो 1 मिनट में कितना कर रही है 11/5/65, तो 24 घंटे में कितना कर रही है, 24 घंटे इंटू 60 मिनट्स होते हैं, बस कर लो सॉल्व, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 11/5 इंटू 24 इंटू 60/65 को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है,
बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा मैंने टाइपो कर दिया था, इग्नोर करना, वो मेरा दिमाग कहीं और था उस टाइम, ठीक है। तो चलो गाइस, तो आई गेस क्लियर हो गया होगा। कोई अगर डाउट आता है तो यू कैन जस्ट पिंग मी एट 8604734785, मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे, ठीक है। और इफ़ यू हैव नॉट टेकन द फ्री मॉक्स कैट एनमैट स्नैप IFT CMAT CET टेस्टनेट का मॉक्स ले लो, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैच न्यू एंड लास्ट बैच फॉर टेस्टनेट CMAT स्नैप SRCC वगैरह का बैच स्टार्ट हो रहा है 7 नवंबर से। डेडिकेटेड कोर्स है गाइस, बिल्कुल स्क्रैच से, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी करेगा, तब भी उसका आराम से इवन SIBM पुणे निकल सकता है। आपको मजाक लग रहा होगा, ऐसा नहीं है गाइस, मैंने कई बार बोला स्ट्रक्चर्ड स्टडी बहुत मैटर करती है। हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है हम लोगों का, एक एक चीज़ का असाइनमेंट मिलता है, प्रॉपर टाइम टेबल होता है, सारे वीडियोस, हैंडआउट्स, थ्योरी नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स, जितना रिलेवेंट है उतना ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं क्योंकि टाइम कम है अब, ठीक है। अगर आप अच्छे से सीरियसली कर लो, असाइनमेंट वगैरह सॉल्व कर लो, तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा होगा निकलने का, ठीक है। बट पढ़ोगे तभी, इनरोल करने से नहीं होता खाली, ठीक है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए उसकी, प्रॉपर रिव्यूज, डेमो वीडियो सबको चाहिए हो, यू कैन डायरेक्टली पिंग मी एट माई नंबर, ठीक है। काफ़ी बच्चे इनरोल कर रहे हैं, 60 बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी 3 बैच से, ये हम लोग का 4th बैच है। बैच साइज कम है तभी बच्चे आते हैं, तभी मतलब आराम से सबको समझ में आता है बेसिकली, ठीक है। और बच्चों को पसंद होता है, बच्चे आते भी हैं, ठीक है। क्योंकि डाउट क्लियरिंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, कोई आपको मेल नहीं करना डाउट किसी को, डायरेक्टली फैकल्टी को पिंग करना है कि ये क्वेश्चन में डाउट है मुझे, आपको सॉल्व किया जाएगा डाउट। थोड़ा लेट कभी कभी हो सकता है, बट हो जाता है सॉल्व आराम से। तो ये चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है, ठीक है। कम बैच साइज में आराम से पॉसिबल है, ठीक है। तो गाइस आई गेस क्लियर हुआ कुछ। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स आप लगाओ, क्लॉक्स अपना लगाओ, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करो, कम से कम 50 क्वेश्चन लगा के जाओ। और गाइस मैंने कई बार बोला, कोई चीज़ से डर लगे उसके पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओगे अपने आप होगा। ये गाइस एक वीडियो था क्लॉक्स का, एक दूसरा वीडियो बनेगा उसमें हम अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और, ठीक है। तो वो वीडियो कर लोगे तो वही अच्छा रह जाएगा, मैं बनाऊंगा 1-2 दिन में, ठीक है। बट इसको अच्छे से देखो और कोई डाउट आता है ब्रिंग मी, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। एक लास्ट काम करो, नीचे ग्रुप्स हैं सारे, ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं गाइस, उसके सेशंस वगैरह होने स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी सेशंस होंगे। चलो बाय।